can start recording. Namaste. Welcome to AHA's Transformation Stories. Today, we have a mother, a teacher, a leader, an educator, a YouTube host, a change maker, an amazing personality who has touched thousands of lives, be it students, parents, or so many viewers through her shows. So she's really inspiring. She's an entrepreneur as well. So there's so much to learn from her, and we have Bandhan Mahajan. Namaskar. कैसे? Welcome, ma'am. We are so happy to host you today and to interview and learn from you. And Sunny, it's an honor, it's a privilege. In fact, I am overwhelmed to have you. I mean, you have invited me, and it's in fact a great pleasure for me to be here with you at AHA Education with Sunny. Thank you, ma'am. Thank you. AHA education is very close to our hearts. We design AHA experiences. आप भी वही काम कर रहे हो, ma'am. Just designing AHA every Sunday, every Monday, every day, through your classes, through your shows, so much and so on. Please tell us, how did this leadership journey started? Okay. Sunny, I've watched a lot of your videos and I'm a great ardent follower of yours. और मैंने देखा है आप अपने videos में ना बहुत सारे props यूज करते हैं, ठीक है? तो आपका मेथड props का है, मेरा मेथड स्टोरी टेलिंग का है। तो मैं एक छोटी सी पहले स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है? So I just recently read the story somewhere and the story actually resonated a lot to what I am today. So ये कहानी जो है ये दो मेंढकों की कहानी है. This is the story of two frogs. Yes. And ये story में we can call them frog A and frog B. And one day they both accidentally fell into a bucket of cream. Cream होती है ना उसके अंदर गिर गए दोनों. So Right. both of them started swimming and paddling. तो उसमें से जो frog A था, after a few hours he got tired, his energy got drained off, and he said, "This entire exercise is futile. It's just a waste of time. सिर्फ energy drain होने वाली है. End of the day, we are going to die anyways. So what's the use?" So he gave up. Frog B ने उसको ये समझाया कि we will come up with some solution. Just don't give up like this. Let's continue to swim and paddle. देखते हैं शायद हम बच भी जाएं. You never know. So Frog A was in no mood to listen. He gave up. He drowned. और वो मर गया. So Frog B was very sad for the loss of his friend, but at the same time, he did not give up that swimming and paddling exercise. And as we all know, वो swimming और paddling के चक्कर में centrifugation हो गया उस cream का, and that entire process जो था, it led to the cream getting converted into butter. Wow. और जब वो butter बन गया, तो फिर वो आराम से बड़ा smoothly और comfortably उसमें से बाहर आ गया. And he survived. अब लाइफ में भी ना कुछ ऐसा ही है. हम में से कुछ लोग फ्रॉग ए की तरह हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. कुछ लोग फ्रॉग बी की तरह हैं जो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते. नाउ एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने फ्रॉग ए की तरह काफी हद तक अपनी लाइफ पर गिव अप कर दिया हुआ था. दैट बैड वाज माय कंडीशन. लेकिन थैंक्स टू द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, थैंक्स टू द अनडॉन्टेड सपोर्ट दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम माय पेरेंट्स, माय फैमिली मेंबर्स, कि ना सिर्फ उन्होंने मुझे फ्रॉग ए की तरह गिव अप करने से रोका, बल्कि फ्रॉग बी की तरह आगे बढ़ने का भी खूब हौसला दिया. दे मोटिवेटेड मी नो एंड. एंड सो टुडे हियर आई एम विद यू राइट इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस. सो इफ आई वर टू टेल यू, आई एम बंधनप्रीत महाजन. आपने वैसे तो मेरे बारे में इतना कुछ बोल दिया है, बट मैं बिल्कुल शॉर्ट सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. सो इफ यू टॉक अबाउट मी, आई एम एन एडुप्रेन्योर बाय प्रोफेशन, a communication and life skills coach by passion, a youth skill mentor by choice, an environment crusader and a social edifier at heart. And at the same time, I'm a voiceover artist, an anchor, a blogger, a translator, an editor, all rolled into one. I've also had the rich experience of being an academic head in one of the reputed schools of West Delhi. And I've also had the opportunity to teach economics as an assistant professor across various teaching learning platforms. So, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? Sounds very cool, isn't it? Yes. But let me tell you, life was never smooth sailing for me. So, life तो शुरू होती है when I landed on this planet in 1978. But
initially the first 20-21 years were very hunky dory. बहुत अच्छे से टाइम पास हुआ। जैसे कहते हैं ना, पापा की लाडली, मम्मी की परी, छोटे भाई की बड़ी दीदी। सो लाइफ वाज प्रीटी कूल, प्रीटी सिंपल, वेरी स्मूथ सेलिंग, कोई इशू नहीं था। But then at the age of 21, I got married, and that marriage was into an altogether different caste, community, and religion. So initially, again, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा. The change was very good. नए रिश्ते मिल रहे थे, नया ambience था, सब enjoy भी कर रही थी मैं. But मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा fault था, probably important है, emotional management भी important है. तो वो life skills शायद मैं 21 years की थी, I was too young. So कुछ issues हुए personal life में, and then that led to a long drawn personal life के issues, health के issues, and slowly steadily I slipped into acute depression. और डिप्रेशन ऐसा कि कई बार तो मैं कई-कई दिन तक आई यूज्ड टू जस्ट कीप लाइंग ऑन माय बेड, क्योंकि इतने ट्रैंक्विलाइजर्स, इतने सेडेटिव्स, इतने इंजेक्शंस देते थे। सो इट वाज लाइक 24/7 आई एम ऑन बेड, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। आई वाज जस्ट नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इवन माय डे टू डे चोर्स। So one fine day, my dad comes to my room and he tells me, "Bachche, if you really want to conquer your fear, you just cannot keep lying like this on the bed all day through. So you have to just get up, you have to get going, and you have to get busy." ये उन्होंने 3 चीज़ें बोली मुझे। एंड सनी जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी दिन बड़ा पोलाइटली लेकिन बड़ा टैक्टफुली और फर्मली एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे बेड से उठवाया एंड ही टुक मी टू इंडिया गेट। इंडिया गेट में हमारा प्लान था कि हम सनराइज़ देखेंगे, और सनराइज़ भी मैंने देखा। वो जो ओस वाली गीली-गीली घास होती है, उसपे नंगे पैर भी चली, और जैसे ही सूरज, वो कहते हैं ना, जैसे सूरज उगा, तो मैंने दोनों हाथों से खोल के सिर्फ सुबह का स्वागत नहीं किया, बल्कि उस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी को भी ऐसे गले लगा लिया। या सो उसके बाद वहां से वो मुझे बंगला साहब गुरुद्वारे लेके गए। आज भी बाई चांस गुरपुरब है। हैप्पी गुरपुरब टू ऑल आवर ऑडियंसेस, टू यू। या तो वहां से वो हमारे में चलिया होता है, पंजाबीज में, सिखों में देयर इज समथिंग कॉल्ड चलिया। 40 दिनों तक वो मुझे रोज बंगला साहब गुरुद्वारे लेके जाते थे। तो वो जैसे ही खत्म हुआ, 41st डे, माय मदर कम्स इनटू माय रूम एंड शी टेल्स मी, बेटा ऐसे करो, मेरा ना एक नया स्टूडेंट आया है, ट्यूशंस लेती थी मेरी मम्मा, शी यूज्ड टू रन अ ट्यूशन सेंटर। तो उन्होंने कहा, बेटा एक ट्यूशन आई है नई, 9th स्टैंडर्ड की लड़की है, मैथमेटिक्स पढ़ानी है उसको। मैंने कहा, मम्मा मैं और मैथ्स की ट्यूशंस पढ़ाऊंगी? रीजन व्हाई, सी आई वाज अ टॉपर इन माय स्कूल एंड कॉलेज थ्रू आउट। आई हैड परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल इन ऑल स्कोलास्टिक एंड पोस्ट स्कोलास्टिक एक्टिविटीज, बी इट इन स्कूल और कॉलेज। लेकिन यहाँ जो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई, सी मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ ना एक बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच्ड है सोसाइटी में। एंड क्या होता है, लोग rather than empathizing with people like me, they go on to ostracize us कि आज पता नहीं क्या हो गया, इसे तो ऊपर की हवा लग गई है, या पता नहीं she's gone mad, she's lost it totally। तो वो एक एम्पैथी का जो कंपोनेंट था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो वो ना, you start telling yourself the same negative thing that you keep hearing all the time, and then whatever you keep telling yourself, you become that way. So even my confidence level was at an all time low at that time। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मा मैं कहाँ से ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ? सो इट वाज दैट बैड। बट माय मॉम वाज लाइक, नहीं बच्चे, आई हैव फुल फेथ इन यू, आई हैव फुल फेथ इन वाहेगुरु जी, आई थिंक यू कैन डू इट। एंड थैंकफुली फॉर मी, आई स्टार्टेड टीचिंग दैट one student in 9th standard, and she performed fantabulously well by the time her annual exams took place. And you know what, Sunny, that day I got my confidence back, and that day Wow. I shouted out loud to society, I am what I am, and no one can take that from me. And I actually felt empowered that day. एंड वहां से मेरी ये जर्नी शुरू हुई, ट्रांसलेटर और ये एडिटर और एंटरप्रेन्योर, जो जो चीजें आपने बोली, धीरे 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 इस जर्नी पे फिर मेरी शुरुआत हुई। Beautiful, ma'am. Now, what is your message amongst all this, super lessons you got? जो टीनेजर्स लोनली फील कर रहे हैं या लो फील कर रहे हैं, पैंडेमिक है, सोशल मीडिया एडिक्शन भी है, और रिलेशनशिप इश्यूज भी बढ़ते हैं टीनेजर्स में, है ना? तो क्या आपका मैसेज होगा फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर देयर झांसी की रानी टू कम आउट? Yeah. So, Sadi, I would just like to say one small little thing. I had read about the psychological study, जो बहुत टाइम पहले एक रिसर्च हुई थी, एंड मैंने भी उसी रिसर्च के बारे में शायद अंदाजन 2004-2005 में ही पढ़ा था, एंड देन ओनली आई गॉट टू नो अबाउट इट।
आई थिंक लोगों से ज़्यादा ना हम खुद अपने जिन्हें हम कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स, उनकी केज और कैद में ना अपने आप को बाँध लेते हैं। जैसे मेरे केस में भी था, लोगों ने मुझे क्या बोला, उसको सुन के मैंने अपने आप को वैसा ही बना लिया कि हाँ, मैं मेरे में कोई कप कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। सो इट्स ऑल अबाउट ऑब्लिटरेटिंग दोज़ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, उनसे निजात पाना बहुत ज़रूरी है। अब उससे निजात के मतलब कितने इम्पोर्टेंट है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी उस रिसर्च में, उस स्टडी में क्या था। आई थिंक आपने भी पढ़ा होगा बिकॉज़ आई नो यू कीप रीडिंग अ लॉट। सो स्टडी ये थी दैट देयर वाज़ दिस रिसर्चर हू गॉट एन एक्वेरियम एंड उस एक्वेरियम में उसने फिश डाली, बहुत सारी वैरायटी ऑफ फिश एंड उसने फूड पेलेट्स जो फूड के उनके दाने होते हैं वो डालने शुरू करे। तो जैसे ही वो डालता था द फिश वुड स्विम टू दैट कॉर्नर। फिर कुछ दिनों के बाद उसने क्या किया, उसी एक्वेरियम के सेंटर में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब डाल दी। सो व्हाट हैपेंड नाउ, जब भी वो फूड पेलेट इधर से डालता था, फिश इधर से आती थी, टकराती थी, आउच, वापस, फिर आई, आउच, वापस। एंड व्हाट हैपेंड, कहीं न कहीं फिश के दिमाग में ये कंडीशनिंग हो गई कि मैं कुछ भी कर लूँ, जितनी मर्ज़ी एफर्ट लगा लूँ, ये ऑब्स्ट्रक्शन कुछ है रास्ते में जो मुझे मेरे गोल तक पहुँचना नहीं देना चाह रही है। एंड वो माइंड ऐसा ही कंडीशन हो गया, सो मच सो दैट कि जब उस रिसर्चर ने उस ग्लास के स्लैब को हटाया, उसके बाद जब उसने फूड पेलेट्स डाले, फिश ने कोशिश ही नहीं की कि वो उस तरफ जाए। हमारे साथ भी लाइफ में कुछ ऐसा ही होता है। अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, दस्तक भी देती है, लेकिन हम 1-2 बार ट्राई करते हैं और रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आया ना, सो वी विल कम, आउच, वापस, आए, आउच, वापस। एंड देन गॉड की डेस्टिनी में जब वो लिखा है, वो चैलेंज हट भी जाता है, अपॉर्च्युनिटी फिर भी वही है, हम जाने की कोशिश ही नहीं करते उस तरफ, थिंकिंग कि वो हमें पहुँचने ही नहीं देगा वहाँ तक। सो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें लाइफ में सीखनी चाहिए कि वी शुड गेट रिड ऑफ आवर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, नंबर 1। नंबर 2, आपने मेरे से क्वेश्चन ये पूछा कि करें क्या? अब ये तो होगी प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, पर मैं सिर्फ एक सिंपल सा सॉल्यूशन डिस्कस करना चाहूँगी जो कि प्रैक्टिकली बहुत ईज़ी भी है यूज़ करना, आई थिंक बहुत लोगों को फ़ायदा भी देगा। और ये टेक्नीक अगेन आई एम नॉट एन एनएलपी प्रैक्टिशनर, बट वो कहते हैं ना एकलव्य की तरह मैं भी दूर-दूर से ज्ञान बटोरती रहती हूँ। मेरे भी बड़े सारे द्रोणाचार्य हैं। तो जैसे आपसे भी मैं बहुत सारा ज्ञान बटोरती रहती हूँ, तो इनडायरेक्टली एकलव्य वाली कहानी है मेरी। तो मैंने एक एनएलपी टेक्निक के बारे में उस टाइम पर पढ़ा और उसमें ये लिखा था कि जैसे हम लोग अपने बारे में कुछ बिलीव्स बनाते हैं, आई एम एब्सेंट माइंडेड, आई कांट अचीव सक्सेस, आई एम नॉट गुड एट डिसीजन मेकिंग, आई एम वेरी बैड एट प्लानिंग। तो ये हमारे कुछ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, राइट? सो इनके लिए ये टेक्निक बोली जाती है कि जो भी चीजें हम प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, उन्हें ही हम पास्ट टेंस में बोलना शुरू करें। So rather than saying I am bad at decision making or I'm not good at decision making, you go on to That's keep telling yourself I was not good at decision making, but I'm far more in control of things now. इनिशियली आपको लगेगा आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, बट धीरे धीरे जब वो आदत बन जाएगी और आपका माइंड एक्चुअली वैसा बिलीफ में लेना शुरू करेगा उसको, आप खुद से वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे और आप वाकई वैसे बन जाओगे। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो हम अपने आप से कहते हैं, लोगों को छोड़ो, लोगों को इग्नोर करो, बट जो अपने आप से कह रहे हो उस पे फोकस करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वेदर इट्स बिल्कुल, नेगेटिव सेल्फ टॉक या इट्स पॉजिटिव सेल्फ टॉक, दैट चॉइस इज एंटायरली योर्स। वो कहते हैं ना, हैप्पीनेस बाय चॉइस नॉट बाय चांस। beautiful, beautiful. Ma'am, so many inspirational lessons, so many simple things. वो फिश वाली स्टोरी बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैंने वो हाथी वाली सुनी हुई है और वो सारे ट्रेनर्स सुनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम, एक टिप फॉर पेरेंट्स on transforming as a better parent, a या happier individual. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करती हूँ पेरेंट्स की, तो मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स के लिए इट्स लाइक टाइट रोप वॉकिंग व्हेन यू आर रेयरिंग अ चाइल्ड। एक चाइल्ड को जैसे आजकल मैं बहुत जगह सुनती हूँ, बच्चे को जो करना है करने दो, अच्छी बात है, वो करना भी चाहिए। बट डोंट बिकम ओवर परमिसिव, डोंट बिकम ओवर पैम्परिंग, डोंट बिकम ओवर प्रोटेक्टिव, बिकॉज़ अ पैम्पर्ड चाइल्ड ओनली गोज़ ऑन टू बिकम अ वीक एडल्ट इन द फ्यूचर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिल्कुल, आप वो बैलेंस बना के रखें, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं जाना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। So you have to maintain that balance. सेकंड चीज जो पेरेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है, जो मैं अपनी खुद की लाइफ एक्सपीरियंस से उन्हें बताना चाहती हूँ, वो ये है कि लाइफ स्किल्स के बारे में मैंने थोड़ा टाइम पहले भी बात की थी। एंड आप सनी जी विश्वास नहीं करेंगे, ये वही लड़की है जिससे आप आज बात कर रही है, वही लड़की है
जो शायद 99 2000 के आसपास लोगों से मिलने तक से कतराती थी बिकॉज़ ऑफ हर डिप्रेशन का प्रॉब्लम। एंड टुडे आई एम अ सर्टिफाइड कम्युनिकेशन एंड लाइफ स्किल्स कोच। तो Yes. तो यहाँ से मैं बोलना ये चाह रही हूँ पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को लाइफ स्किल्स में ज़रूर ट्रेन करें। क्योंकि क्या होता है हमारा फ़ोकस ये रहता Beautiful. है या हम बच्चों के स्टार्टिंग के जो 15 या 14 साल स्कूलिंग के रहते हैं ना, हमारा हमेशा फ़ोकस रहता है मार्क्स, मार्क्स, मार्क्स। एकेडमिक क्रेडेंशियल्स इज़ व्हाट वी कीप फोर्सिंग अपॉन, राइट? लेकिन अगर हम रियलिटी देखें, द रियलिटी ऑफ लाइफ, इट्स ओनली अबाउट लाइक 15 to 20% ऑफ आवर सक्सेस इज़ एक्चुअली गवर्न्ड बाय द एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। द रेस्ट 80% ऑफ इट कम्स फ्रॉम बिल्कुल। लाइफ स्किल्स और लाइफ स्किल्स में भी सबसे टॉप पे कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो मुझे ऐसा फील Wow. होता Yeah. है मैं शायद उस जगह लैक करती थी, शायद इसलिए मैंने सफर भी ज़्यादा किया। इसीलिए यू कीप टॉकिंग आजकल आपने सुना भी होगा आईक्यू पर ही नहीं, ईक्यू व्हिच इज़ द इमोशनल क्वोटिएंट, एसक्यू व्हिच इज़ द सोशल एंड स्पिरिचुअल क्वोटिएंट एंड एक्यू व्हिच इज़ द एडेप्टेशन क्वोटिएंट। इन सब पर वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बच्चों को सिखाना भी पड़ेगा। तो उनको लाइफ बिल्कुल की मैम, रियलिटीज़ बिल्कुल, फेस करना ब्यूटीफुल। सिखाना है। दैट्स वेरी इंपोर्टेंट। या आपकी फेवरेट हॉबी क्या है मैम? I used to be very fond of writing and composing poems बहुत साल पहले। वाह! अभी लेकिन अभी काफ़ी टाइम से वो छूट गया बट येस मैंने एक नया पैशन डिस्कवर किया एंड दैट्स मेकिंग वीडियोज़ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड एंड दैट्स द हाँ, रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड ऑफ विद माय ओके। यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ बंधन्स गुरुकुल। तो उसमें हम लोग यही कम्युनिकेशन सुपर्ब, स्किल्स, सुपर्ब। लाइफ स्किल्स और इन्हीं क्रिएटिविटी रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही वीडियोज़ बनाते हैं। फेवरेट गाना मैम? फेवरेट गाना सी इंस्पिरेशनल वाला तो मुझे चकते इंडिया में एक मूवी है जो मूवी है उसमें एक सॉन्ग है हाँ, अब तो भई चल पड़ी अपनी ये नाव है। हाँ। एक तो वो मेरा वेरी फेवरेट है नाइस। एंड रोमांटिक सॉन्ग्स में देयर इज़ दिस मूवी कयामत से कयामत तक एंड उसमें एक सॉन्ग है गज़ब का है दिन। दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग। बढ़िया, तो कौन-सा गाओगे हमारे लिए 2 Uh, लाइनें मैम? yeah, I can sing Gazab Ka Hai Din. If you want me to sing that, I can sing that. Okay. प्लीज़। Okay. So it goes, गज़ब का है दिन देखो ज़रा, ये दीवानापन सोचो ज़रा, हम भी अकेले तुम भी अकेले मज़ा आ रहा है कसम से, कसम से। आई एम वेरी, वेरी थैंकफुल टू यू मैम। आपने बहुत, बहुत, बहुत इंस्पायर किया।